Good morning, Namra. Good morning, Ayushi. Good morning. पीपीटी विजिबल है सबको? लास्ट टर्न पे एक टॉपिक हम लोग का डिस्कस हो रहा था एसएनएमपी। और लोग आ जाए तो भी और डिस्कस करते हैं, इसको आगे बढ़ाते हैं। So in last turn, I discussed about or given brief discussion about the simple network management protocol, that is SNMP. SNMP is a frame or the framework for managing devices in an internet using TCP/IP protocol suite. This most of the protocol are very ancient and used before the OSI model. Either it is still used in OSI model, but they come into the existence as per the TCP/IP protocol मॉडल या TCP/IP प्रोटोकॉल के थ्रू ही ये इंट्रोड्यूस हुए थे. इट प्रोवाइड्स अ सेट ऑफ डिफरेंट फंडामेंटल ऑपरेशंस फॉर मॉनिटरिंग एंड मेंटेनिंग एन इंटरनेट. As I already told you, application layer protocol is also within the OSI model. In TCP/IP model, application layer was the fifth layer as the toppest layer. But in the OSI model, it is seventh layer and it is supreme layer in also OSI model. The protocol that specifies how a network management station
communicates with agent software in remote devices such as routers. SNMP defines the format of messages and their meaning. In each and every station, there is a station master. Sometimes it is also known as manager. तो यहाँ पे मेन मैनेजर का कॉन्सेप्ट या रोल इंपॉर्टेंट है. According to Douglas E. Comer, computer networks and internets. This definition is defined by the Douglas E. Comer that SNMP defines the format of messages and their meaning. तो सिंपल नेटवर्क मैसेज प्रोटोकॉल या मैनेजमेंट प्रोटोकॉल. मेन कॉन्सेप्ट क्या होता है? द कॉन्सेप्ट SNMP uses of manager and agent, that a manager usually a host controls and monitors a set of agents, और जो कि आपके उसमें से पॉसिबली होते हैं रूटर्स. अगर बहुत छोटा स्मॉल कर यूज कर रहे हैं जहां पे आपके पास सिर्फ 2 ही लेयर का काम है, स्मॉल नेटवर्क है, तो आल्सो यूज्ड एज ब्रिजेस. पर रूटर ले लेते हैं तो रूटर जो है आपका एक इफेक्टिव नेटवर्क इस्टेब्लिशमेंट को आप रेफर कर सकते हैं, उसके थ्रू आप इसको यूज कर सकते हैं, रेफरेंस आप दे सकते हैं. तो अच्छा, दूसरी बात, ये जितने भी प्रोटोकॉल मैं आपको बता रहा हूं, दीज डील्स विद एप्लीकेशन लेयर डायरेक्टली एंड आल्सो यूज समवेयर beside the application layer as transport layer and session layer simultaneously. ये कभी कभी यूज होते हैं और इस पे जो है आपका शॉर्ट नोट बन के रखे आएगा, और जो आपके छोटे क्वेश्चन बन के आते हैं 10 क्वेश्चन जो 3 मार्क्स के आते हैं उसमें कंपलसरी पार्ट में इस तरह से आएगा. ठीक. नाउ कम टू द हिस्ट्री ऑफ SNMP. Size and number of network required a standard protocol in order to communicate with devices on the network. In 1970s, SNMP version 1, the first network management protocol, originally designed as a quick fix. 1982 SNMP version 2, standard design. अभी हम लोग इसके फ्रेम फॉर्मेट भी देखेंगे. And 2004 SNMP version 3, that is current version. Okay, this is the current version. So now come to the SNMP technology. So SNMP is an application level protocol in which few manager stations control over set of agents. The protocol is designed at the application level so that it can monitor devices made by different manufacturer and installed on different physical networks. You can also show that or say SNMP free management tasks from both the physical characteristics of the managed devices and the underlying network. The technology also, which is I am going to discuss, it can be used in heterogeneous internet made of different local area networks, LANs, and wide area network WANs connected by routers, and for a very large scale you can say that gateway made by different manufacturers, जो कि नेटवर्क इस्टेब्लिश करते हैं, नेटवर्क मैन्युफैक्चरर्स होते हैं. सो इंटरनेट मैनेजमेंट मॉडल, फर्स्ट ऑफ ऑल SNMP टेक्नोलॉजी यूज एक्सचेंज नेटवर्क इंफॉर्मेशन थ्रू प्रोटोकॉल डेटा यूनिट. प्रोटोकॉल डेटा यूनिट जो है ये अपने आप में एक फ्रेम फॉर्मेट, फिक्स फॉर्मेट होता है, जो हम लोग आगे डिस्कस करेंगे. ट्रांसपोर्ट लेयर के कॉन्सेप्ट हम लोग ने TPDU पढ़ा था, ट्रांसपोर्ट प्रोटोकॉल डेटा यूनिट, एंड सेशन लेयर के कॉन्टेक्स्ट में SPDU पढ़ा था, सेशन प्रोटोकॉल डेटा यूनिट. तो द अपर लेयर्स जो कि इंटरनेट टेक्नोलॉजी और मैसेज ट्रांसफर जो प्रोसेस होता है उसमें पार्टिसिपेट करती है, तो ये इनका अपना एक प्रोटोकॉल डेटा यूनिट फिक्स्ड होता है, एक अलग से सेपरेट प्रोटोकॉल डेटा यूनिट होता है, और ये उनको यूज करते हैं.
part of the inter-network management architecture. This shows network elements, agents. Actually दो इंपॉर्टेंट रोल इसमें होते हैं या दो इंपॉर्टेंट एलिमेंट होते हैं. एक होता है मैनेजर और दूसरा होता है एजेंट. देयर आर मैनी एजेंट्स एंड देयर आर मैनी मैनेजर्स. हर स्टेशन, हर राउटर जो है जहां पे होता है उसको हम लोग स्टेशन कहते हैं. तो जिस तरह से स्टेशन पे स्टेशन मास्टर होता है, whether it is a small station or it is big junction, but there is a responsible person authorized to maintain the decorum and the responsibility as well as followed the protocol which is set by the different layer. That person or the role is known as manager or the station manager. So manager and agents are two prime key elements. Besides, there are network elements. I already discussed agents, manage objects, management information base MIB. यहाँ पे MIB मिलेगा, SNMP मिलेगा और SMI भी मिलेगा. ठीक, अभी हम लोग उसको डिस्कस करेंगे. SMI भी मिलेगा. स्ट्रक्चर ऑफ मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन नीचे देखिए है. सिंटेक्स नोटेशन, नेटवर्क मैनेजमेंट सिस्टम NMS, डिफरेंट पार्टीज एंड मैनेजमेंट प्रोटोकॉल्स. ओके, और यहाँ पे जो आप देख भी पा रहे हैं NMS का एक सिंपल सा आर्किटेक्चर है जिसमें यूजर इंटरफेस है और नेटवर्क मैनेजमेंट एप्लीकेशन इज आल्सो देयर. सो दिस इज द स्मॉल आउटलाइन और द स्ट्रक्चर ऑफ SNMP इन द टेक्नोलॉजिकल पॉइंट or the technical aspects. Now come to the operation. SNMP is a simple request/response protocol which uses 6 operations: get next, get bulk, set, trap and inform. These are the some syntax or the operation performed through SNMP. Basically, I already told you here is a manager and agent. A management station called a manager is a host that runs the SNMP client program. Okay, a managed station called an agent. जो स्टेशन है उसको हम लोग मैनेज स्टेशन, उसको हम लोग एजेंट कहते हैं. It is nothing but a router. Or you can also say that it is host that runs the SNMP. और डिले ज्वाइन कर रहे हैं नितिन सैनी, अमर राज. एक क्लास के बाद दूसरे क्लास के बीच में गैप होता है. अब नेटवर्क है क्या है ये तो. That runs the SNMP server program. Management is achieved through simple interaction between a manager and an agent. The agent keeps performance information in the form of a database. एक डेटाबेस या टेबल में वो परफॉर्मेंस या लॉग टेबल के फॉर्म में उसको मेंटेन कर लेता है, जनरेट करता है. The manager has access to the values in the database. You can show that or say that whenever, for an example, a router can store in appropriate variable the number of packet received. कौन सा नंबर का पैकेट उसने रिसीव किया, कौन फर्दर कौन सा पैकेट उसने फॉरवर्ड किया है और उसका डिले कितना हुआ. जिस तरह से हर स्टेशन पे एक रिपोर्टिंग होती है. अगर आपने कभी भी देखा जाए ट्रेन वाला जो आपका स्टेशन होता है उसमें कभी एक जाइए, एक बड़ी सी एक लॉग बुक बनी होती है और स्टेशन मैनेजर हर ट्रेन का कमिंग टाइम और जो भी अगर कोई ऐसी ट्रेन भी जो स्टेशन पे नहीं रुक रही है तब भी उसका जो थ्रू टाइम होता है, ठीक है, वो भी नोट करती है. कौन उसका एक्चुअल टाइम कितना है, कितने डिले पहुंच रही है, ये भी स्टेशन मास्टर के थ्रू ही मेंटेन होता है एक लॉग बुक में और साथ ही साथ सर्वर पे भी. बाय विच नाउअडेज यू आर एबल टू नो द पोजीशन ऑफ ट्रेन. कितनी लेट चल रही, कितना डिले हो रहा है. ये जो रूटर्स होते हैं या स्टेशन होते हैं वो एजेंट
और मैनेजर के थ्रू ही मेंटेन किए जाते हैं। सारी इंफॉर्मेशन इनके थ्रू ही मेंटेन की जाती है। द मैनेजर कैन फेच एंड कंपेयर द वैल्यूज ऑफ डिफरेंट वेरिएबल्स टू सी इफ राउटर इज कंजेस्टेड और नॉट। सो द कंजेस्टेड और नॉट का मतलब वो पूरा पाथ एक रूटर से और दूसरे रूटर के बीच का, ये दोनों स्टेशन मैनेजर और एजेंट की मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसको चेक करना, और जहां पे जरूरत है वहां पे हाल्ट देगा, रोकेगा और दूसरे को पास देगा। तो दीज मैनेजमेंट प्रोसीजर इज डन विद दीज टू की पर्सन, मैनेजर एंड एजेंट। द मैनेजर कैन आल्सो make the router perform certain actions. For example, you can say that router periodically checks the value of reboot counter to see when it should reboot itself, or when any packet should be halted or stopped, या उसको आप कहीं रोक लेते हैं, चेक कर लेते हैं, so that the more important or the sophisticated task can be performed as per the priority set before the sending of that particular packet into the network. So these all manages through with the help of, you can say that, manager. Agent can also contribute the management process. जो उसका जो हर मैनेजर के साथ एक एजेंट इन्वॉल्व रहता है, सारा काम मैनेजर खुद नहीं कर पाता है, तो वो मैनेजर जो एजेंट होता है वो भी मैनेजर के टास्क को कंप्लीट करने में अपना रोल प्ले करता है। द सर्वर प्रोग्राम रनिंग ऑन द एजेंट कैन चेक द इन्वायरमेंट एंड इफ इट नोटिस देयर आर एनी अनयूजुअल और यू कैन से दैट नॉट नॉर्मल। जब नॉर्मल आपका जो है प्रोसीजर या ट्रेवल प्रोसीजर नहीं होता या कुछ आपको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लगता है, अनयूजुअल लगता है, इट कैन सेंड अ वार्निंग मैसेज दैट इज नोन एज ट्रैप। जो आप ट्रैप यहाँ पे देख पा रहे हैं, जो ट्रैप है वो यही है, ट्रैप टू द मैनेजर। ठीक, in other words you can say that management with SNMP is based on three basic ideas. First one, a manager checks an agent by requesting information that reflects the behavior of the agent. Second important, manager forces an agent to perform a task by resetting values in the agent database. Third important task, an agent contribute to the management process by warning the manager of an unusual situation that is sometimes known as trap. So these are the meanings of that particular command. Get और get next और get bulk तो आप बहुत अच्छे जानते हैं। get सिंगल रिक्वेस्ट भेजेगा, get next में मोर देन वन रिक्वेस्ट आएंगी, और बल्क में जब कोई भी आप रिक्वेस्ट भेजते हैं, इंफॉर्मेशन भेजते हैं, तो वो get जो है वो बल्क होगा। Now come to the SNMP version 1 packet format. This is also known as frame format. Frame format, packet format is the same term. So SNMP version 1 packets contain two parts. First part contains version and community name. Second part contains protocol data unit, SNMP PDU. और SNMP PDU में क्या होता है? PDU type, protocol data unit type, request ID, error status, error index, object 1, you can say that value, जो भी आपकी वैल्यू हो, object 2 या value 2, object x, value x. This is वेरिएबल। ये जो तीन आप देख पा रहे हैं लास्ट के पार्ट, ये वेरिएबल है। आउट ऑफ 7 दीज पर्टिकुलर फ्रेम्स, जो लास्ट के 3 हैं, दीज आर वेरिएबल्स डिपेंड अपॉन द लेंथ ऑफ द मैसेज और द पैकेट। दिस इज द सेकेंड पैकेट, जो ऐसा आपका SNMP वर्जन 2 पैकेट फॉर्मेट्स। Like SNMP version 1, SNMP version 2 contains also two parts. First part is called wrapper.
which contains authentication, privacy, information and a context. Second contains PDU, similarities to the SNMP version 1, जिसमें प्रोटोकॉल डेटा यूनिट, रिक्वेस्ट आईडी, एरर स्टेटस और एरर इंडेक्स कोई एक रहेगा, और या फिर इसके साथ साथ ये यहाँ पे पॉसिबिलिटी दे रखी है कि ऑब्जेक्ट 1, वैल्यू 1, जितने भी आपको अकॉर्डिंग टू योर नीड वेरिएशंस हो सकते हैं, दिस इज आल्सो वेरिएबल, और साथ में यहाँ पे ये ऑप्शनल है, कंट्रास्ट टू द SNMP वर्जन 1 जहां पे सारे फिक्स थे, वहां पे सिर्फ ओनली 3 जो लास्ट के हैं, जो आपके वैल्यू 1 है, ऑब्जेक्ट 1 है, उनपे में ही आपको चॉइस मिल रही थी, लेकिन यहाँ पे एरर स्टेटस और एरर इंडेक्स या फिर ऑब्जेक्ट वैल्यू जो आपकी दी हुई है, इसमें भी आप ऑप्शन ले सकते हैं और ये भी ऑप्शनल है. नाउ कम टू द एडवांटेज एंड डिसएडवांटेजेस in context of SNMP version 1 and SNMP version 2. Advantages: simple design है, easy implementation है, widespread uses, expandability. In contrast or disadvantages, security breaches are there, security holes, and it is also old technology that I already told you. This concept or the protocol is as old as TCP/IP protocol suite. आपका जो है OSI जो है अभी आपका नया है, लेकिन still it is used and perform effectively as per the requirement. जो आपका SNMP है अभी भी चल रहा है. Now come to the third version, that is known as SNMP version 3. That's why it is known as SNMP new version. So structure, component, architecture, all are the similar to version 1 and version 2, but new feature which is include in SNMP version 3, or the new technology concept which is used in OSI model nowadays. So new feature include authentication and privacy. I already told you as disadvantage or the limitation that there were security holes or the breaches. Security proper तरीके से मेंटेन नहीं थी, लेकिन यहाँ पे authorization and authentication, privacy, access control, ये तीनों ही फीचर इंक्लूड हैं. Naming of entities, personnel or the people or the user, as well as policies. You can say that different protocol and rules are decided before it is going to use. Username and key management are also possible there. Notification destinations remotely configurable via SNMP operations. So these are the new features included in new version of SNMP. Now SNMP as conclusion, the goals: integrated network management, interoperability standards. Network management application based on SNMP rely on the standard based TCP/IP protocol to effectively oversee large heterogeneous networks. I already say that it is used in also a very big or large heterogeneous network where we use a gateway. जहां पे आप इंटर नेटवर्किंग टूल्स की बात करते हैं तो वहां गेटवे यूज करते हैं, तो वहां तक भी इसका स्कोप है और वहां पे भी ये इफेक्टिवली परफॉर्म करता है. SNMP sites on the application layer and uses user datagram protocol to communicate with each network devices. You can say that it is also used. ये TCP/IP प्रोटोकॉल के साथ भी मैनेज्ड है और UDP के साथ. Means you can say that if there question arises that how you can say that SNMP protocol is supported both wireless and wire oriented services. So you can say that SNMP is the only protocol which is used in both type of connection,
that is connection oriented and connection less services. Okay, now come to the another protocol जो थोड़ा थोड़ा इंट्रोडक्शन है, इसमें नेटवर्क सॉफ्टवेयर है, नेटवर्क प्रोटोकॉल यूनिट है, और टुमारो देयर इज आल्सो गेस्ट लेक्चर, उसमें आपको जो है आपके गेस्ट स्पीकर आ रहे हैं, वो नेटवर्किंग का कॉन्सेप्ट बताएंगे, साथ ही साथ नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम, नेटवर्क सॉफ्टवेयर, लाइनेक्स के बारे में भी बताएंगे। तो उनका जो मेन गेस्ट लेक्चर है वो नेटवर्क बेस्ड पे भी होगा, नेटवर्क बेस्ड ही होगा। और क्योंकि ऑलरेडी आई टोल्ड यू लाइनेक्स और नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम यूज्ड इन डिफरेंट एप्लीकेशन प्रोग्राम्स इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ नेटवर्क, जहां पे नेटवर्क स्टैब्लिशमेंट या रिमोटली आपका यूजर या क्लाइंट कहीं बाहर है तो वो भी मैनेज होता है उन पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर के थ्रू, जो कि कल गेस्ट लेक्चर में डिस्कस किए जाएंगे। उसी के कॉन्टेक्स्ट में नेटवर्क टाइम प्रोटोकॉल है, एनटीपी, बहुत ध्यान से पढ़िए इसको, और इसका मैं आपको ये पीपीटी शेयर भी कर दूंगा, क्योंकि इसके पहले के भी कंटेंट मुझे अभी शेयर करने हैं, तो ये पीपीटी मैं आज शेयर कर दूंगा, क्योंकि इसके कंटेंट लगभग खत्म हो जाने वाले हैं। तो ये आपको और कहीं मिलेंगे भी नहीं, बुक वगैरह फ्रोजन में भी आपको ये बहुत कम उम्मीद है मिले, लेकिन ये सब यूज होते हैं, बहुत स्मॉल स्केल पे यूज होते हैं, और आपका जो कंपलसरी क्वेश्चन वाला पार्ट है उसमें ये क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं, छोटे छोटे टॉपिक जरूर पूछे जाते हैं। सो अनदर प्रोटोकॉल इज नेटवर्क टाइम प्रोटोकॉल। नेटवर्क टाइम प्रोटोकॉल और एनटीपी synchronizes clocks of hosts and routers in the internet. NTP provides nominal accuracies of low tens of milliseconds on wireless access network, also some milliseconds on LAN, and sub microsecond using a precision time source such as cesium oscillator or GPS receiver. All of you know about the cesium oscillator, because चाहे आपकी वो सेकेंड की डेफिनेशन हो, चाहे आपकी किलोग्राम की डेफिनेशन हो, या आपकी मीटर की डेफिनेशन है, ये सीजियम ऑक्सीलेटर पे ही बेस्ड है। 12th में 11th में आपने ये तीनों डेफिनेशन, जो आपका सीजीएस सिस्टम और एमकेएस सिस्टम है, इसमें जो भी डेफिनेशन है वो आपने इसी बेस पे ही पढ़ी हुई है। और नाउ द न्यू लेटेस्ट कॉन्सेप्ट इज जीपीएस सिस्टम और द जीपीएस रिसीवर। So NTP software, network time protocol software, has been ported to almost every workstation and server platform available today, from PCs to Craze and Unix, Windows, BMS, embedded system, even home routers and battery backup system. You can say that जो भी आपके यहाँ टाइमिंग, जो भी कहीं भी टाइमिंग मेंटेन होता है किसी भी पीसी में, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट में, दिस इज डन विद द हेल्प ऑफ नेटवर्क टाइम प्रोटोकॉल। उसी के थ्रू ही टाइम आपका मेंटेन होता है, ग्लोबली मेंटेन होता है। और सेटिंग में भी आप जो भी टाइम फॉर्मेट और जो भी टाइम स्केल आप रखना चाहते हैं वो भी आप चूज कर सकते हैं, कंट्री का टाइम भी आप चूज कर सकते हैं। एंड दिस ऑल वर्क done with the help of network time protocol. The NTP architecture, protocol and algorithm have been evolved over the last 2 decades to the latest NTP version 4 software distribution. Now come to the topic needs for precision time. Why it is used for NTP? नेटवर्क टाइम प्रोटोकॉल की जरूरत क्या है? देयर आर सम फैक्ट्स बाय विच यू कैन से दैट द नीड फॉर प्रिसीजन टाइम। फर्स्ट, डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस ट्रांजेक्शन, जर्नलिंग एंड लॉगिंग, स्टॉक मार्केट बाय एंड सेल ऑर्डर्स, बहुत इंपॉर्टेंट है टाइम का स्टॉक मार्केट में। सिक्योर डॉक्यूमेंट टाइम स्टैम्प with cryptographic certification, aviation traffic control and position reporting, इसको हम लोग कहते हैं रियल टाइम। जहां रियल टाइम की बात होती है, रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम,
या रियल टाइम मैनेजमेंट सिस्टम, वहां पे भी एनटीपी नेटवर्क टाइप प्रोटोकॉल को बहुत इफेक्टिवली यूज किया जाता है। रेडियो एंड टीवी प्रोग्रामिंग, लॉन्च एंड मॉनिटरिंग सब सेट कर दिया जाता है, ऑटोमेटिकली प्रोग्राम आपका लॉन्च होता रहता है। इंट्रूडर डिटेक्शन, लोकेशन एंड रिपोर्टिंग, मल्टीमीडिया सिंक्रोनाइजेशन फॉर रियल टाइम टेलीकॉन्फ्रेंसिंग, interactive simulation, event synchronization and ordering, network monitoring, measurement and control. These are the needs. Early detection of failing network infrastructure, devices and air conditioning equipment. Differentiated services, traffic engineering. And last, distributed network, gaming and training. So in the conclusion of NTP, primary server synchronized to national time standard via radio, satellite and modem. Secondary, servers and clients synchronized to primary server via hierarchical subnet. And in the configuration or architecture of client and server, operate in master slave, जहां पे आप फ्लिप फ्लॉप की बात करते हैं, जिसमें जेके फ्लिप फ्लॉप कॉमनली यूज्ड एज मास्टर स्लेव या फंक्शनल विद मास्टर स्लेव फॉर्मेट, सिमेट्रिक एंड मल्टीकास्ट मॉडर्न मोड्स with or without cryptographic authentication, sometime reliability assured by redundant servers and diverse network paths, engineered algorithm reduce jitter, mitigate multiple sources and avoid improperly operating servers. The system clock is disciplined in time and frequency using an adaptive algorithm responsive to network time and clock oscillator frequency band. तो यहाँ जो है आप यू कैन से दैट कि आप एनटीपी यूज कर सकते हैं। ये एक स्मॉल आर्किटेक्चर है बट इट इज आउट ऑफ स्कोप ऑफ योर सिलेबस। बस ज्यादा से ज्यादा इस पे नोट्स लिखने को आएगा, तो ये आपके सिलेबस में नहीं है। स्टिल आई विल प्रोवाइड यू दिस पर्टिकुलर पीपीटी, तो अगर आप थोड़ा इंटरेस्टेड है तो और इसमें डीप स्टडी कर सकते हैं। ये सब आपके पास नहीं है, ना ही नेटवर्किंग की आपके यहाँ लैब है नहीं, ये मेन लैब में ही आप इसको डिमॉन्स्ट्रेट कर सकते हैं। दिस इज फॉर द लैब पॉइंट ऑफ व्यू। लास्ट टॉपिक, एनटीपी गोल्स एंड नॉन गोल्स, या यू कैन से दैट एडवांटेजेस एंड सम लिमिटेशंस। डिसएडवांटेज नहीं है, थोड़ी सी लिमिटेशंस है। प्रोवाइड द बेस्ट एक्यूरेसी अंडर प्रिवेलिंग नेटवर्क एंड सर्वर कंडीशन, resist many and varied kinds of failure including two-phase, fail stop, malicious attacks and implementation bugs। क्योंकि यहाँ पे टाइम का मेन इंपॉर्टेंट रोल होता है, तो टाइमली अगर आपके पास मैसेज चला जाता है फॉर एनी थ्रेट, फ्यूचर थ्रेट और द एनी मिसहैपनिंग, you will be able to reconstruct or prevent from these attacks and the bugs. Maximize utilization of internet diversity and redundancy, automatically organize subnet topology for best accuracy and reliability, self-contained cryptographic authentication based on both symmetric key and public key infrastructure or encryption and independent of external services also. These are some non-goals. Local time, this is provided by the operating system. Access control, this is provided by firewalls and address filtering. You can say that these are limitations or the goals which is not actually covered or in the range of NTP. This can also be managed without NTP. Sometimes privacy, all protocol values including time values that are public. Non-repudiation, this can be provided by a layered protocol if any requirement or the necessity rise. Conversion of NTP timestamp to and from other representation and the formats. NTP 4 version is not required. It is very much
extraordinary topic and it is out of your रिमोट प्रोसीजर कॉल और ये सब हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं। एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है नेटवर्क फाइल सिस्टम, जो कभी कभी आप लोग शेयरिंग करते हैं। थोड़ा सा बस इसको एक बार डिस्कस कर लेते हैं। लास्ट टॉपिक है आपका नेटवर्क फाइल सिस्टम, एनएफएस। ठीक, नेटवर्क फाइल सिस्टम, it is also known as sometime as a protocol for sharing files and directories for access over a network। आप सभी लोग शेयर करते हैं, शेयरिंग जो मैनेज करते हैं थ्रू अ LAN और द WAN और द WWW। This particular task is completed with the help of NFS, Network File System Protocol. It is based on remote procedure call. That topic is already discussed with you in context of transport and network layer. Developed by Sun Microsystem 1984. The current version is 4 and also known as RFC 3530. The common features of network file system are different security mechanism, the compound procedure, file system replication and migration, file open and close operations, file locking, client caching and delegation. These are the some common features or the responsibility or the attributes of network file system. So this is all about the SNMP and the network time protocol. ये सब इसी से अटैच्ड है और एप्लीकेशन लेयर में ये इफेक्टिवली यूज होते हैं। अभी इसमें कुछ टॉपिक और बचे हैं, वो भी हम अभी डिस्कस करते हैं। मीन टाइम आप सभी लोग अटेंडेंस चैट बॉक्स में जरूर लिख दीजिए। 46 students are there and all are required to mark your attendance in chat box. Only 41 students mark their attendance. अटेंडेंस सभी लोग मार्क कर दीजिए, क्योंकि इसी चैट बॉक्स पेज पे आपकी अटेंडेंस रिकॉर्ड होगी और पीपल सॉफ्ट में भी आपकी अपलोड होगी। रूमी यादव का अगर किसी के पास मोबाइल नंबर हो तो इसी चैट बॉक्स में लिख दीजिएगा। बात करनी है, तो उन्होंने पढ़ाई करना छोड़ दिया है, पढ़ाई करेगी कि नहीं करेंगी, रूमी यादव का नंबर दे दीजिए। मैं भी ढूंढ लूंगा, लेकिन अगर आप में से किसी के पास हो तो इसी चैट बॉक्स में जरूर लिख दीजिए। किसी के पास नहीं है? काजल वर्मा लिख दो, वो देना जिससे बात हो जाए, इसी पे लिख दो चैट बॉक्स पे। सिद्धांत, सिद्धांत, चलिए ठीक।
इतने सब हम लोग ने इंपॉर्टेंट प्रोटोकॉल अभी तक पढ़े हुए हैं, HTTP, SMTP, MIME, IMAP, POP, SNMP, NTP, ये जितने भी P लगे हुए लास्ट में, ये सारे इंपॉर्टेंट प्रोटोकॉल, these are used whenever you are going to deploy your website, your project, your software through the internet or the www. ठीक, इसमें हम लोग ने HTTP पढ़ा हुआ है, www, URL, ये सब भी, और HTML के बारे में भी थोड़ा सा इंट्रोडक्शन लिया हुआ है। इसके अलावा भी कुछ कॉन्सेप्ट है जो कि एप्लीकेशन लेयर में बहुत इफेक्टिवली यूज होते हैं, एंड इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। विदाउट यूजिंग दीज कॉन्सेप्ट योर एप्लीकेशन विल नॉट work as a full functional mode as per the requirement of the user. So application layer include some other functions. First one is identifying communication partners. These are very important and relevant role. बहुत मुश्किल से मैंने आपको ये PDF ढूंढा हुआ है, सर्च किया हुआ है, एंड दिस इज द नोट्स फ्रॉम द book which is written by the HOD of Computer Science, Lucknow University, ब्रजेंद्र सिंह, डॉक्टर ब्रजेंद्र सिंह की मैंने आपको एक बुक भी दी हुई है, उसी बुक को रेफर करके ही मैंने ये कंटेंट्स यहाँ पे PDF से सर्च किए हैं आपके लिए। तो ये नोट्स बहुत ही इंपॉर्टेंट एंड रेलिवेंट है, और इनसे बहुत लास्ट के जो क्वेश्चन है इससे फ्रेम होते हैं। एप्लीकेशन लेयर जो ये आप कह सकते हैं फोर्थ यूनिट आपकी बहुत बड़ी है, और इसका जो स्कोप बहुत लार्ज है। बाकी सब में तो आप बाइफरकेशन कर सकते हैं कि सेकंड यूनिट में डेटा लिंक लेयर से आपके स्टार्ट है, थर्ड यूनिट में नेटवर्क लेयर है, फोर्थ यूनिट में ये सारी लेयर्स आपकी अपर लेयर है, वो सारी तीनों लेयर इंक्लूड हो गई, इनकी फंक्शनलिटीज हैं, तो ये बहुत बड़ी यूनिट बन जा रही है। सो एप्लीकेशन लेयर इंक्लूड सम अदर फंक्शंस आइडेंटिफाइंग कम्युनिकेशन पार्टनर्स। The application layer identifies the availability of communication partners for an application with data to transmit. Second important function, determining resource availability. This task is also deal with the help of application layer, which determines whether sufficient network resources are available for the requested communication and synchronizing communication. All the communication occur between the application requires cooperation, which is managed by an application layer. I already told you different services and the responsibilities of application layer. Beside these important responsibilities of application layer, there are some very much important and occasionally used services of application layer, but is very important in context of network administration, and whenever you are going to deploy your website or the product through www or the internet, capital I वाला internet. So first important topic is network virtual terminal. यहाँ पे मैं आपको थोड़ा इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ, उसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में इसको और डिटेल में हम लोग एनालाइज करेंगे। सो नेटवर्क वर्चुअल टर्मिनल एंड एप्लीकेशन लेयर allow a user to log on to a remote host. To do so, the application creates a software emulation of a terminal at the remote host. The user computer talks to the software terminal, which in turn talks to the host. The remote host links that is communicated with one of its terminal, so it allow the user to log on. और ये एक आपका VNC सॉफ्टवेयर होता है, प्रैक्टिकली आप चाहें तो इसको यूज भी कर सकते हैं। VNC वर्चुअल नेटवर्क कम्युनिकेशन, VNC सॉफ्टवेयर आपको मिल जाएगा, बहुत पुराना सॉफ्टवेयर है, इट इज नॉट लेटेस्ट। नाउ डिफरेंट वर्जन्स आर पब्लिश्ड ऑफ दैट पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर। VNC सॉफ्टवेयर आप अपने सिस्टम पे और दूसरे क्लाइंट के सिस्टम पे, किसी और क्लाइंट के सिस्टम पे आप इंस्टॉल कर लीजिए, IP एड्रेस से दोनों को कनेक्ट कर दिए, एंड यू विल बी एबल फ्रॉम योर सिस्टम टू कंट्रोल
दैट पर्टिकुलर सिस्टम, उस अपने सिस्टम पे ही बैठे बैठे उसके सिस्टम को आप पूरी तरह से कंट्रोल कर सकते हैं। आप उसको लॉग ऑन कर सकते हैं, उसको आप कह सकते हैं क्या, किसी तरह से कोई भी मैसेज भेज सकते हैं, शट डाउन कर सकते हैं। बस एक काम आप नहीं कर सकते हैं, जो पावर ऑन और ऑफ। एक बार पावर ऑन हो गई, वो सिस्टम बूट हो गया, यानी सिस्टम बूटिंग प्रोसेस है, ये इसकी एक लिमिटेशन है, या आप इसको कह सकते हैं इसकी एक लिमिटेशन या ड्रॉबैक भी हो सकता है कि ये इसका एक जो जिसको अभी तक इम्प्लीमेंट नहीं किया जा सका है, कि बूटिंग प्रोसेस यानी जो पावर ऑन वाला जो टास्क है वो ये परफॉर्म नहीं कर सकता है। लेकिन एक बार आपका सिस्टम बूट हो गया तो लॉग ऑन से लेकर के और शटडाउन तक का सारा काम ये कर सकता है। बस बूटिंग प्रोसेस उस पर्टिकुलर क्लाइंट को ही करना होगा, और कोई भी इंफॉर्मेशन कुछ भी शेयर करना है, उसको मैनेज करना है, इंस्टॉल करना है, भाई दो ही तरीके हैं, या तो आप अपने सिस्टम से वहां पे किसी तरह शेयर करा दें, ट्रांसफर कर दें फाइल और उसको बता दें, या फिर आप ही कॉपी, जैसे आप करते हैं एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में कॉपी करना, वैसे ही कॉपी कर सकते हैं, उस सिस्टम को पूरा ऑपरेट कर सकते हैं। यानी एज अ सिंगल यूजर आफ्टर बूटिंग दैट पर्टिकुलर सिस्टम, एज अ सिंगल यूजर यू कैन डन एवरीथिंग टू दैट पर्टिकुलर सिस्टम। उसके साथ कुछ भी कर सकते हैं उस पर्टिकुलर सिस्टम के साथ, बट बूट होना जरूरी है, उस सिस्टम को फंक्शनल होना बहुत जरूरी है। एंड दिस वर्क इज डन विद द हेल्प ऑफ नेटवर्क वर्चुअल टर्मिनल कॉन्सेप्ट, और सॉफ्टवेयर का नाम है VNC। दिस इज आल्सो रनिंग विद द लैन वैन और मैन तीनों के साथ साथ, और इंटरनेट पे भी आपका ये सॉफ्टवेयर वर्क करता है। अगर उसने कोई फायरवॉल और सिक्योरिटी फीचर्स इंप्लीमेंट नहीं किए हैं तो वो डेफिनेटली वर्क करेगा। अगर इंप्लीमेंट भी किए हैं तो आपके पास उसकी की है और आपके पास उसका पासवर्ड है, तो जब अगर पासवर्ड हो जाएगा, पता चल जाएगा, तो आप उसको मैनेज कर पाएंगे, उसको देख पाएंगे। नेक्स्ट टॉपिक, फाइल ट्रांसफर एक्सेस एंड मैनेजमेंट। ये हम लोग पहले डिस्कस भी कर चुके हैं, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल भी पढ़ चुके हैं, बट स्टिल दिस विल बी studied in the context of FTAM, और ये पूछा गया हुआ इंपॉर्टेंट टॉपिक है FTAM, फाइल ट्रांसफर एक्सेस एंड मैनेजमेंट। ये हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। सो दिस इज ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर। किसी की कोई क्वेरी है तो पूछ सकता है, किसी की कोई क्वेरी है तो पूछ सकते हैं, नहीं तो आप लीव कर सकते हैं, अटेंडेंस में लगा दूंगा।